حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ نحل قرآن پاک کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے مسلسل 4 شبوں سے تلاوت کر رہا ہوں، جس میں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، قرآن کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن بیان واضح بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ان کے لیے جو اسلام لائے۔ عزیزوں، آغاز بیان میں، آغاز گفتگو میں جو پیغام، جو میسج آپ لوگوں کو کنوے کرنا ہے انشاءاللہ، وہ یہ کہ دیکھیں، ہر شے اور ہر چیز کی، ذرا سی باریک باتیں میرا ساتھ کیے گا، ہر شے اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی میزان ہوتی ہے۔ اب میزان بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بھئی میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان تو عربی کا لفظ ہے، 2 پلے دائیں بائیں رکھیں اور بیچ میں ڈنڈی لگا دیں، اس کا نام عربی میں میزان ہے، اردو میں ترازو۔ وہ جو کریں جملے کے پر ترازو، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی میزان ہے۔ میزان یعنی ترازو۔ ترازو کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، پلے لگائیں تو بیچ میں ڈنڈی رکھ دی، جو اس کو بیلنس کرے، جو اس کو متوازن رکھے، وہ میزان کہلاتی ہے۔ لیکن ہر شے کی میزان الگ الگ ہے۔ اب سنیے گا جملہ میرے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ جو افراد شعر کہتے ہیں، چاہے عربی میں یا فارسی میں یا اردو میں، تو ایسی تو نہیں کہ میں آ کے بیٹھے اور فوراً بولنا شروع کر دیا اور شعر بن گیا، نہیں۔ شعر کہنے کے لیے کچھ اوزان ہیں، کچھ بہریں ہیں جن میں شعر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ بہریں ٹوٹ جائیں تو شعر خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جو بہریں ہیں وہ شاعری کی میزان ہے، وہ جو بہریں ہیں وہ شاعری کی میزان ہے۔ اچھا، سارے علوم کی میزان ہے علم منطق۔ توجہ ہے سننے والوں کی؟ سارے علوم کی میزان ہے علم منطق۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ منطق ایسا علم ہے، منطق ایسا علم ہے، لاجک کا علم ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان خطائے ذہنی سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جس کو منطق نہیں بھی آتی، جب کوئی بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو کہتا ہے بھائی یہ بات آپ کی منطقی نہیں ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ منطق وہ علم ہے جس سے پرکھا جاتا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تو آپ سمجھ میں آ گیا؟ سارے علوم کی میزان ہے علم منطق۔ شاعری کی میزان ہے وہ عروض، علم عروض، جس میں جن بحروں میں شعر کہا جاتا ہے۔ اب میں نے فارمولا دے دیا، نتیجہ آپ کو نکالتے رہے۔ سائنسی علوم کی میزان ہے علم ریاضی۔ سائنس پڑھنی ہے تو علم ریاضی سیکھنا ہوگا تاکہ اس کی میزان سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو بات تھی شاعری کی، منطق کی، دیگر علوم کی، ہے نا؟ اب جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سواری میں بیٹھتے ہیں، تو گاڑی میں ایک میٹر لگا ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ جناب فاصلہ اتنا طے ہو گیا، پیٹرول اتنا رہ گیا ہے، اب 10 کلومیٹر، اب 5 کلومیٹر۔ وہ جو میٹر لگا ہے وہ فاصلہ ناپنے کی میزان ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہو جملہ؟ بند کریں دروازہ، بند کریں۔ اب کوئی آئے نہیں یہاں سے، مجلس تک آپ کے آداب کے خلاف ہے، بیچ مجلس میں سب چلے آ رہے ہیں، بیچ میں تو آداب کے خلاف ہے۔ ساتھ دیتے رہے آپ میرا تاکہ میں جملہ پہنچاؤں۔ تھک تو نہیں رہے؟ آپ بتائیں تھک تو نہیں رہے؟ میں مسائل پڑھ کے بھی اتر سکتا ہوں، ہے نا؟ گفتگو
तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मेरा साथ देते रहा करें। जहाँ जहाँ से इतने अफराद आए, मैं देख रहा हूँ आखिर तक बैठे हुए हैं, और गली में अफराद बैठे हुए हैं, मोमिनीन भी, मोमिनात भी, बच्चे भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सहल बयान, सहल अंदाज में पहुँच जाए, ताकि कुरान का मफहूम सुनने वाले लोग पहुँच जाए। अभी आयतें पढ़ना शुरू नहीं की मैंने, अभी तो गुफ्तगू मीज़ान पर हो रही है। तो शायरी की मीज़ान इल्म अरूज, ठीक है ना, शायरी की मीज़ान इल्म अरूज, साइंस की मीज़ान इल्म रियाजी। वो जो मीटर लगा हुआ है गाड़ी में, उससे आप फासला तय कर रहे हैं, वो फासला नापने की मीज़ान है, ठीक है। तो अब हर चीज़ की कोई ना कोई मीज़ान है, लेकिन हर चीज़ की मीज़ान अलग अलग है। जिस मीज़ान में आप गेहूं को तोलेंगे, उसमें सोने को नहीं तोलेंगे। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। जिस मुझे जाना है आयतों तक, इसी तमीज़ मान रहा हूँ। हर मीज़ान तो मान लिया हमने कि हर चीज़ की है, लेकिन शायरी की अलग, इल्म अरूज है ना, हर चीज़ की अलग है, फासला नापने की अलग है, लेकिन हर चीज़ की मीज़ान शय अलग है। जिसमें सोना तोलेंगे उसमें गेहूं नहीं तोलेगा, जिसमें गेहूं तोलेगा उसमें सोना नहीं तोलेगा, ठीक है ना। अब जब हर चीज़ की आपने तय कर लिया कि कोई ना कोई मीज़ान है, तो अब हिदायत की मीज़ान हो तो क्या हो। माशाअल्लाह, जब आप कह रहे हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई मीज़ान है, और मुझे मंदिर से समझा भी रहे हैं आप कि फला की ये मीज़ान, फला की ये मीज़ान, फला की ये मीज़ान, इल्म अरूज शायरी की मीज़ान, फासला नापने की मीज़ान, मीटर लगा हुआ है, तो हिदायत की मीज़ान हो तो क्या हो। इसीलिए कुरान ने कहा था, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान मजबूत रास्तों की तरफ हिदायत करता है। तो हमारी समझ में आ गया कि हिदायत की मीज़ान का नाम है कुरान, हिदायत की मीज़ान का नाम है कुरान। हम कितनी आसानी से यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब बयान को हम आगे ले जा रहे हैं। हिदायत की मीज़ान का नाम है कुरान। फिर कुरान में आवाज़ दी अल्लाह ने, शहरो, सूरह बकर, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। हमने कुरान, मैं तेजी से गुज़रूंगा, मेरा साथ देते रहिएगा। हमने कुरान, थोड़ा सा वक्त गुजर चुका है इसलिए मैं तेज पढ़ूंगा। हमने माह मुबारक रमज़ान में कुरान को नाज़िल किया, हुदल लिन्नास। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। ये सूरह बकर में कहा, और सूरह नहल में कहता है हुदन व रहमा लिक़ौम युमिनून। ये कुरान हिदायत है उनके लिए जो ईमान रखते हैं। फिर सूरह बकर में कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हमने कुरान को हिदायत बनाया साहिबाने तक़वा के लिए। कुरान ने बार बार कहा कुरान हिदायत, कुरान हिदायत ईमान वालों के लिए, कुरान हिदायत साहिबाने तक़वा के लिए। कुरान नाज़िल हुआ माह रमज़ान में, है ना। फिर कुरान ने, परवरदिगार ने आवाज़ दी हुदल लिन्नास। ये कुरान हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए। तो मोमिन के लिए भी हिदायत, मुत्तकी के लिए भी हिदायत, पूरे इंसानों के लिए भी हिदायत, ईमान वालों के लिए भी हिदायत, तक़वा वालों के लिए भी हिदायत। और अपने कुरान ने आवाज़ दी व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाह बोल रहा है, जलाल में बोल रहा है, साहिब जबरूत, साहिब कमाल, मालिकुल मुल्क, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजमलुल अजमलीन, अहसनुन नाज़िरीन, अल्लाह बोल रहा है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अगर ये समझते हो, अल्लाह बोल रहा है, अगर ये समझते हो कि ये कुरान हमारा कलाम नहीं है, फातू पे सूरत मिसले, तो इस जैसा एक सूरा बनाकर लाओ। अगर ये समझते हो, अगर ये समझता कि कुरान देखो, कल मुझे चेक करके बताओ कि मैं हवाला सही दे रहा हूँ। अगर इनको तुम फिर रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर समझते हो कि हमने जो किताब अपने अब्द पर, अपने मोहम्मद पर, अपने बंदे पर, अपने नबी पर, अपने रसूल पर, अपने चाहिए हबीब पर उतारी, अगर ये हमारा कलाम नहीं है तो दलील लानी है तो एक काम करो, इस जैसा एक सूरा बनाकर लाओ। ये सूरह बकर और अब सूरह हूद 11वां सूरा और उसकी 13वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फातू बे अशरे सूरह मिस्री मुफ्तरियात। अगर समझते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस क्या करना है। अल्लाह कहता है कुछ मसले वाली बात नहीं है, इस जैसे 10 सूरे बनाओ, वहाँ कहता है 1 बनाओ, यहाँ कहता है 10 बनाओ। और अब सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले, उनको हदिया कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। अगर अल्लाह कह रहा है, रसूल कहते हो कि अगर सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, अगर सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए किस बात के ऊपर कि वो कुरान के जैसी कोई किताब बनाकर लाएंगे, ला यातू बिमिस्लिही, वो कुरान जैसी किताब बना के नहीं आ सकते। वलाउ काना बाज़ुहुम ले बाज़िन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे की सपोर्ट क्यों ना कर रहा हो, अगरचे एक दूसरे की मदद क्यों ना कर रहा हो, तो कुरान ने चैलेंज किया 3 मकाम पर 1 सूरा बनाओ, 10 सूरे बनाओ, पूरा कुरान बनाओ, सारे इंसान जमा हो जाओ, पाकिस्तान के मुसलमान जमा हो जाओ, एशिया के मुसलमान जमा हो जाओ, सारी दुनिया के मुसलमान जमा हो जाओ, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाओ, ये कुरान जैसी किताब बनाओ। खुदा कहता है कोशिश करते
जवाब दे मिल के सारे। कुरान खुद चैलेंज कर रहा है, तहद्दी कर रहा है, लाओ अगर समझते हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है तो लाओ इसके साथ जैसा जुड़ा बनाकर, ठीक है ना। अब एक बयान को आगे ले जाने के लिए जुमला कह रहा हूँ। देखो कुरान की अजमत पर तुम सुन रहे हो और सुनते रहोगे, तुम्हारी शादाब और मौतर समाते नजर बस से महफूज रहे। जो मेरे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, एक जुमला लेके जाए कुरान मजीद के हवाले से ताकि बयान को मैं आगे ले जाऊँ। अभी मुझे फिर आयतें पढ़नी है ना, और आयतें पढ़नी है और एक जुमला भी सुनाना है, लेकिन पहले जुमला कह दूँ। देखो तौरेत हजरत मूसा पर अल्लाह ने नाज़िल की, है ना। तौरेत हजरत मूसा पर नाज़िल की, इंजील हजरत ईसा पर अल्लाह ने उतारी। तौरेत मूसा पर आई, इंजील ईसा पर आई। मूसा का असा मौजज़ा है, तौरेत मौजज़ा नहीं है। मूसा का असा मौजज़ा है, वो बयान करा था, वो लकड़ी की आसा बन गई, ठीक है ना। उससे बहुत से काम लेते थे लोग, या आसा या कुरान में जिक्र हुआ है, उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जुमला क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मूसा का आसा मौजज़ा है, वो नबी है ना। मूसा का आसा मौजज़ा है। अच्छा ये मौजज़ा कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह, है ना। तो मूसा का मौजज़ा है आसा, तो है कोई जो मूसा के मौजज़े के मुकाबले पर आए? भाई मूसा का मौजज़ा है ना। तो अल्लाह मौजज़ा किसे कहते हैं? जो अल्लाह के आने वाले नबी की नबूवत की दलील बन जाए। तो मूसा का आसा मौजज़ा है, तौरेत मौजज़ा नहीं है। हजरत ईसा का कुरान में जिक्र है, मरीजों को शिफायात करना और जो मुर्दा है उसे जिंदा कर रहे हैं, है ना। ये उनका मौजज़ा है, लेकिन इंजील मौजज़ा नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तिलावत करते थे तो पहाड़ों से तिलावत की आवाज आती थी। ये आवाजों का आना ये उनका मौजज़ा, ज़बूर मौजज़ा नहीं है। तो ना इंजील मौजज़ा, ना तौरेत मौजज़ा, ना ज़बूर मौजज़ा, तन्हा कुरान है जिसे अल्लाह ने हिदायत की मीज़ान भी बनाया, हिदायत का मौजज़ा भी बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहे, मौला आबाद रखे आपके नारों को, आपके क्या अली कहने को मौला आबाद रखे, सलामत रखे। आपकी इस इबादत को अल्लाह कबूल फरमाता रहे। मेरे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, मोमिन, मोमिनात, जहाँ जहाँ सुन रहे हो, अब बयान को आगे ले जा रहा हूँ। तो कुरान ने खुद अपना तारुफ कराया। एक सूरा बनाओ, 10 सूरे बनाओ, पूरा कुरान बनाओ। कुरान मौजज़ा है, कुरान तहद्दी है, कुरान नबी पर नाज़िल होने वाली कायनात की आफाकी और सबसे आलमगीरी किताब है। इसके मुकाबले कोई किताब नहीं। चाहे जिन्नात आ जाए, चाहे इंसान आ जाए, चाहे कोई मखलूक आ जाए, कुरान जैसी बना नहीं सकती, है ना। तो ये तो कुरान ने खुद अपना तारुफ कराया। तो बच्चों कि मैं हिदायत, मैं रहमत, मैं बशारत, मैं बुशरा, मैं खुशखबरी मोमिनों इस्लाम मुसलमानों के लिए, मैं हिदायत ईमान वालों के लिए। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, ये तो कुरान ने खुद अपना तारुफ कराया, है ना। लेकिन अब मैं आपको सुना रहा हूं कि बोलता कुरान अली ने कुरान का तारुफ कैसे कराया। मिल के चलना है। जहां तक आप साथ आ गए, आप मुश्किल बातों को गुजार कर अब सुने अली क्या कह रहे हैं। हवाला नहजुल बलागा का, है ना। अली बोल रहे हैं नहजुल बलागा में, पूरे जुमले नहीं पढ़ा हूं मैंने, हवाला दिया था कि जाके आप डिटेल पढ़ते रहे। मैं तो 4-5 जुमले निकाल के वहां से वो आपको हदिया कर रहा हूं, ठीक है ना। कौन बोल रहा है? बोलता कुरान। कुरान इस सामित की फजाइल सुना रहा है। क्या कमाल का जुमला कहा अली ने कुरान के लिए। सुम्मा, अली बोल रहे हैं, सुम्मा अनज़ला, तवज्जो अली वालों के सुनने वाले की, सुम्मा अनज़ला अलैहिल किताब। ये मिंबर मकसद है आले मोहम्मद के पहुंचाने का। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कुरान की बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अली की बात सुना रहा हूँ। सुम्मा अनज़ला अलैहिल किताब नूरन ला तुत्फ़ा मसाबिहो व सिराजन ला यख़्लु तवक़्क़दो व बहरन ला युदको कारो व इज़्ज़न ला तुज़ुब अंसारो व इज़्ज़न ला तुज़ुब अंसारो व रियाज़ुल अदले व गुदरानो जअलहुल्लाहु रय्यन लिअरशिल उलमा व रबियन लिक़ुलूबिल फ़ुक़हा व इल्मन लिमन फ़अ
व हदीसन लिमन रवा व हुक्मन लिमन कज़ा। अली कह रहे कि मेरे अल्लाह ने मेरे भाई मोहम्मद पर ऐसी किताब उतारी जो ऐसा नूर है जिसकी किंदीलें कभी गुल नहीं होती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली का जुमला है, मेरा जुमला नहीं, अली का जुमला है। मेरे भाई नबी पर अल्लाह ने ऐसी किताब नाज़िल की जो ऐसा नूर है जिसकी किंदीलें कभी खुल नहीं होती। अली बोल रहे हैं वो सिराजन ला यहूद व कब्र, और ये कुरान ऐसा चिराग है जिसकी लौ कभी खामोश नहीं होती। ये कुरान ऐसा समंदर है जिसकी गहराई तक कोई पहुंच नहीं सकता। ये कुरान ऐसी इज्जत है, अली बोल रहे कि ये कुरान इज्जत ला तुज़मन सालो, ये कुरान अपने पढ़ने वाले को ऐसी इज्जत अता करता है कि जमाना हार जाए, कुरान पढ़ने वाला जिंदगी की दौड़ में कभी ना हारे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पिछवाड़ी बोल रहे मौला आबाद रखे, सलामत रहे, सलामत रहे। ये अली के मोहब्बत करने वाले सलामत रहे। ये कुरान ऐसी इज्जत है, अपने पढ़ने वालों को ऐसा वक़ार देता है, ऐसी इज्जत देता है कि जमाना हार जाए, कुरान पढ़ने वाला, कुरान तिलावत करने वाला जिंदगी की दौड़ में कभी ना हारे। और अब अली ने कहा वह रियाजुल अदल व खुदरानो, वह रियाजुल अदल व खुदरानो। अली कह रहे ये कुरान वो है जिसमें अदल के बागीचे हैं। इस कुरान में अदल के तालाब है, तो ये कुरान अदल का बागीचा भी है, ये कुरान अदल का तालाब भी है। जअलहुल्लाहु रय्यन लिअतशिल उलमा। अली का सुनो सुनाओ, अली कह रहे कि अल्लाह ने इस कुरान को तशनगाने इल्म के लिए ऐसा पानी बनाया जिससे वो सैराब हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने इस कुरान को, कुरान के में सुनो, अल्लाह ने इस कुरान को तशनगाने बोले तवज्जो रखे, अल्लाह ने इस कुरान को तशनगाने इल्म के लिए ऐसा पानी बनाया, ऐसा आबे इल्म बनाया कि जिसे पीकर वो सैराब हो जाए। वो रबियन लिकुलूबिल फुक़हा, और ये कुरान फकीहों के दिलों की बहार है। ये कुरान फकीहों के दिलों की बहार है। वो इल्म लिमन रहा, और अली कहे ये कुरान इल्म है उसके लिए जो गौर करे, ये कुरान सच्ची बात है उसके लिए जो सच बोले, ये कुरान सच्चा फैसला है उसके लिए जो सच्चा फैसला करने का आदी हो। अली ने जैसे कुरान पर बोला वैसे कोई नहीं बोला। अरे बोले तो वो जो कुरान समझ चुका हो। अल्लाहु अकबर। मौला सलामत रहे, मौला आबाद रखे, सलामत रखे। जैसे अली ने कुरान पर बोला वैसा कोई नहीं बोला। बोला कोई वैसा कोई नहीं बोला। भाई तुम तो बोलो मेरे साथ साथ, है ना, बहुत सारा मजमा है। जैसा अली ने कुरान पर बोला वैसा कोई नहीं बोला। इसलिए बोलेगा तो वो जो कुरान को समझ चुका हो, बोलेगा वो जो कुरान समझता हो, बोलेगा वो जो जिसमें कुरान की फहम हो, बोलेगा वो जो कुरान के नूर एक हो, बोलेगा वो जिसका नूर कुरान का नूर हो, बोलेगा वो जिसकी हकीकत कुरान की हकीकत हो, बोलेगा वो जिसकी माहियत कुरान की माहियत हो, बोलेगा वो जिसकी रगों में वो कुरान वाला खून हो, बोलेगा वो जो कुरान का वारिस हो। मेरे अल्लाह ने 114 सहीफे नाज़िल किए। मेरे अल्लाह ने आदम से खातम तक 114 सहीफे नाज़िल किए। फिर क्या किया अल्लाह ने? उन 114 सहीफों का खुलासा किया 4 किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, कुरान में। फिर अल्लाह ने क्या किया? 114 सहीफों को खुलासा किया 4 किताबों के अंदर। फिर अल्लाह ने पिछली 3 किताबों का खुलासा किया कुरान पाक में। यानी 114 सहीफे 114 सूरत बनकर कुरान में समा गए। तो अली वालों मुझे समझ में आ गया कि 114 सहीफों का खुलासा 4 किताबें, पिछली 3 किताबों का खुलासा कुरान पाक, ज़बूर का खुलासा कुरान में, तौरात का खुलासा कुरान में, इंजील का खुलासा कुरान में, कुरान का खुलासा सूरह हमद में, सूरह हमद का खुलासा बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का खुलासा भाई बिस्मिल्लाह में। और बे का नुक्ता अगर मुजस्सम हो जाए तो अली बन जाए। शुरू से लेके आखिरी तक नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। हर वो बंदा बोलेगा जो रिस्क अली से लेता है, जो औलाद अली से लेता है, अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके
पाक दूत की गवाही के लिए हजरत अली को ऐसा सलाम पेश करना है जिब्रील अपने परों में लेकर नजफ की दहलीज पे जाकर कहे, उठ मेरे मौला, तेरे चाहने वालों ने तुझे सलाम भेजा है, तेरे मवालियों ने तुझे सलाम भेजा है। अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके दोनों हाथों को इल्मे अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नारे माशाअल्लाह या अली बेशक या अली या अली या अली देखो कुरान पाक में मैं कहना वक्त कम है, थोड़ी ताखिर हो गई है, वक्त कम है, लेकिन फिर आपको मैं आयत सुनाने लगा हूँ। मैं आपके ज़हन आमादा है माशाल्लाह, फ़ज़ाइल अली सुन रहे हैं, सलामत रहें, आबाद रहें, ठीक है ना। अब मैं फिर कुरान की फजीलत में कुरान ही के हवाले से एक जुमला सुना रहा हूँ मैं, और हवाला दे रहा हूँ सूरह मुबारक है बय्यना का। जाए जाके देखें कुरान में ये आयत मौजूद है या नहीं, ठीक है ना। सूरह बय्यना में अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत तमीज़ें खत्म हो चुकी है, अब जल्दी से रिजल्ट लेना है, और रिजल्ट लेकर हम इंशाअल्लाह मसाइल से करीब हो जाएंगे। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान का तारुफ कुरान से, रसूलुम मिनल्लाह। अल्लाह कहता है ये जो हमारा रसूल है ना, ये कहाँ से आया? मिनल्लाह, अल्लाह के पास से आया, ठीक है। सलामत है आपकी बेदार समात है, बोलिए मेरे साथ से, बोलते रहिए, थक रहा हूँ मैं तो बोलते रहिए। अल्लाह कहाँ से आया? अल्लाह के पास से कौन आया? मिनल्लाह, रसूल आया। ये रसूल कर इस मेरे प्यारे नबी के लिए काम क्या है, फरीजा क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है? अल्लाह से पूछे। उसका आगे का जुमला यतलू सुहफ़ मुतहरा, इस नबी का काम यह है कि ये पाक और पाकीज़ा मुतहर सहीफों की तिलावत करे। मैंने कुछ नहीं कहा आपके सामने, ठीक है ना। ये रसूल कौन है? अल्लाह की तरफ से आया। देखिए नारा लगाने का तो एक आदमी का मूड होता है ना, जब आप दिल में आपकी मोहब्बत अली जागती है, बेदार है माशाल्लाह, मजीद बेदार होती है तो आपका खून जोश मारता है। जब खून जोश मारेगा तो उसका इजहार होगा ज़बान से, है ना। लेकिन मुझे तो आई पड़ी रसूल मिनल्लाह है, अल्लाह के पास से रसूल आया हमारा मोहम्मद। इसका काम क्या है? यतलू सुहफ़ मुतहरा, इसका काम ये है कि ये पाक और पाकीज़ा सहीफों की तिलावत करता है। मालिक हमने मान लिया, ठीक है ना। ये कुरान क्या है? अल्लाह की निगाह में कुरान क्या है? पाक और पाकीज़ा सहीफे। कुरान है सुहफ़ मुतहरा, कुरान है पाकीज़ा सहीफे। ये सूरह बय्यना में कहा, और अब सूरह परवरदिगार में, और अब सूरह अबसा में कहा मरफूअतिन मुतहरा। कुरान का तारुफ कुरान के हवाले से अल्लाह कहता है ये कुरान तो किताब है जिसका हर हर्फ बहुत बुलंद है। सामने वाले खामोश हो जाते हैं, देखो जुमले में जाया नहीं, पीछे वाले बोल रहे हैं। ये कुरान वो है जिसका हर हर्फ मरफूआ मुतहरा, इसका हर हर्फ बड़ा बुलंद है। कुरान का हर हर्फ बहुत पाक है, कुरान का हर हर्फ पाक, कुरान की आयत पाक, कुरान का मिजाज पाक, कुरान की तीनत पाक, कुरान का जुमला पाक, कुरान की इबारत पाक। कुरान पाकीज़ा सहीफे है ना, कुरान पाकीज़ा सहीफे है। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, फिक़ह का मसला ये है कि तौरात अल्लाह की किताब, लेकिन तौरात पर बगैर वुज़ू के हाथ लगाना हराम नहीं है। भाई इंजील पे बगैर वुज़ू हाथ लगाना हराम नहीं है, लेकिन मैंने कुरान पाक सामने रखा और मैंने कहा उठ के आए और आके कुरान के हुरूफ हाथ रखे। आपने कहा नहीं, मैंने कहा आप पाक नहीं है, कहानी पाक है। नजिस हालत में इंसान नहीं छूता, आप नजिस नहीं है, सारे पाक बैठे हैं, लेकिन कुरान को मस करने के लिए आपको पाक होने के बाद फिर पाक होना पड़ेगा। तो ऐसा पाकीज़ा कुरान कि जिसको छूने के लिए पाक होने के बाद फिर पाक होना पड़े, ये नाज़िल कहा हुआ ताहा मा अंज़लना, ऐ मरकज़े तहारत मोहम्मद, हमने कुरान तुझ पर उतारा, जितना कुरान पाक उतना मोहम्मद पाक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
रहमत पा गए। थोड़ा बोलते नहीं मिल के सारे जी नारे तकबीर। भाई अवाम ज्यादा है और कम अज कम थोड़ी सी इतनी कवाल कर ले कि करीबी जो प्राइवेट है ना प्राइवेट उधर तक आवाज चली जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनकी रगों में अली की मोहब्बत है, दोनों हाथ बुलंद करके इर्द गिर्द यारी चुगर्द मुर्तजारी सवा लख नारे हैदरी। अब तक की सलामत रहे, आबाद रहे। मैं आपकी बेदारी देख रहा हूँ, सलामत रहे सारे माशाल्लाह। ये जो मोमिन मोमिनात बैठे हुए बानियानी मस्जिद जनाब शुक्र हुसैन साहब, फरदाबाद साहब, राहत साहब, अल्लाह इनकी तौफीकात नेक में इजाफा फरमाए। जितने मोमिन मोमिनात जो तस्करे मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनने बैठे हुए, उनको मैं नहीं कह रहा होता मैंने जमानत लिया होता, मेरी औकात अपनी जमानत लो। मासूम कहते हैं जिक्रुना अहले बैत शिफा, हम अहले बैत का जिक्र शिफा है। मेरा साथ दिएगा तो खुलासा बयान कर रहा हूँ। अब मैं वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त गुजरता जा रहा है। हम अहले बैत का जिक्र शिफा है, तो पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? आपकी थकन दूर हो जाए, आपके अमराज दूर हो जाए, सारे मुमनात के अमराज दूर हो जाए, मुझे जुमला कहने की इजाजत दे दे। भाई अब तक का खुलासा क्या है कि कुरान है पाकीज़ा सहीफे, कुरान है मुतहर, कुरान है मुतहर, कुरान है मरफू, कुरान की हर आयत पाक, कुरान का हर सूरा पाक है ना, तो पैगाम पाक है ना। फैसला आपसे करवाना चाह रहा हूं मैं, पैगाम पाक है ना, तो मुझे कहने दो कि अगर पैगाम पाक है तो जो पैगाम का पहुंचाने वाला होगा उसका ना ज़हन नजीस होगा ना दिमाग। अगर पैगाम पाक है तो जो पैगाम बर होगा, पहुंचाने वाला होगा, उसका ना ज़हन थक नहीं आ रहा दिमाग। नारे आखिर मेरे साथ बोला करे जुमले के ऊपर, ये सामने खामोश हो जाते, उसका ना ज़हन पाक होगी, उसका ना ज़हन नजीस होगा, उसका ना फिक्र नजीस होगी, है ना। जैसे कि पैगाम पाक है तो उसूल बन गया कि पैगाम पाक है, इसीलिए कलमे में है कलमे तय्यबा। इसीलिए कलमे में है कलमे तय्यबा, यानी हम जो पैगाम दे रहे हैं ये तय्यब है, ये ताहिर है, ये पाक है ना। तो पैगाम पाक है। अब यह पैगाम पाक है तो उस पैगाम का हमसे और आपसे मुतालबा यह है, डिमांड यह है कि फकत तुम्हारा बदन पाक नहीं हो, तुम्हारा मुआशरा पाक हो, तुम्हारा ज़हन पाक हो, तुम्हारा बदन पाक हो, तुम्हारी रूह पाक हो, तुम्हारा लिबास पाक हो, तुम्हारी फिक्र पाक हो, तुम्हारा ज़हन पाक हो, तुम्हारी ज़हन पाक हो। और अल्लाह ने ये डिमांड की कि तुम्हारे मुआशरे की हर चीज़ पाक हो, हर चीज़ पाक होनी चाहिए, फकत लिबास नहीं। अगर बदन की तहारत चाहिए, अगर बदन की तहारत चाहिए तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बदन पाक हो जाएगा। तो बदन पाक होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह से और रूह पाक होती है अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। खतरा आखिरी कलमा है, मिलके सारे सलामत है, जहां आवाज जा रही है।
कहीं भी मसाइब पे आ जाऊंगा, लेकिन एक जुमला बाकी है और वो आपकी समाधि को सुनना चाह रहा हूं मैं अकेले नहीं पढ़ सकता हूं, मेरा साथ दे तो मैं पढ़ूंगा। नौजवानों मेरा ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ दे जरा भैया, हाथों को खोल कर जरा आवाजें बुलंद करके मेरे साथ दे जरा। फैसला हो गया कि इस्लाम का मुतालबा ये है, इस्लाम की खुदा मुझे ताकत दे मौला के सदक़े में कि मैं पैगाम पहुंचा सकूं। इस्लाम का मुतालबा ये है कि तुम्हारे मुआशरे की हर चीज पाक हो, घर भी पाक, मोहल्ला भी पाक, मुआशरा भी पाक, लिबास भी पाक, बदन भी पाक, रूह भी पाक, जिस्म भी पाक, है ना। और अब नजासतें बहुत है ना, खुदा की किताबों में नजासतों को चैप्टर है, जाके देख ले, नजासतें बहुत है। और इस्लाम कहता है कि हम चाहते हैं कि हर नजासत को दूर रखो, तो अल्लाह ने हर नजासत को दूर रखने के लिए अलग अलग पानी रखा। एक फिक्र है जो आपको दे रहा हूं मैं। अल्लाह ने हर नजासत, जहां बात जा रही है, अल्लाह ने हर नजासत को फेंकने के लिए, रफा करने के लिए, दफा करने के लिए अलग अलग पानी रखा। मैंने बयान तो कर दिया, अगर बदन की तहारत चाहिए तो कलमे शहादतैन पढ़ो, अगर रूह की तहारत चाहिए तो कलमे विलायत पढ़ो, अगर चाहते हो कि नसब पाक हो तो निकाह करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर चाहते हो कि नसब पाक हो, अगर चाहते हो कि नसब पाक हो तो निकाह करो, अगर चाहते हो कि माल पाक हो तो हुस्न निकालो। यार नहीं मालूम कि मुझे हर शय को पाक करने के लिए अलग अलग अल्लाह ने पानी रखा। और अब पानी की भी तीन किस्में, मैंने नहीं उलमा ने लिखी, फिक़ह में लिखी। पानी की तीन किस्में क्या है? पहली किस्म है पानी की आबे कलील, थोड़ा पानी, गिलास में पानी रखा हुआ, देखा गिलास में पानी रखा हुआ है, ये बोतल के अंदर ये थोड़ा पानी है, ये कहलाता है आबे कलील, पाक है, मैं पी रहा हूँ। खुदा ना खासा कहीं से नजासत का एक कतरा इस पे गिरा, बोतल भी नजिस, पानी भी नजिस, ये आबे कलील है। इससे ऊपर का दर्जा है आबे कुर। आबे कुर किसे कहते हैं? 3.5 बालिश, लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदो, उस पे पानी भर दो, ये है आबे कुर। आबे कुर नजिस नहीं होता जब तक के उसका रंग, उसकी बू, उसका मजा जब तक नजासत ना बदले, तो आबे कलील नजस हो जाए, आबे कुर नजिस नहीं होता। और अब आखिरी है दरिया। सारी दुनिया की नजासें दरिया में डाल दो, उसकी तहारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आबे कलील है अवामुन नास, आबे कलील है अवामुन नास, आबे कुर है उलमाए किराम। और दरिया के लिए मैं नहीं कहूंगा, कुरान कहेगा मरजल बहरैन यल्तक़ियान। ये अली और फातिमा की शादी नहीं है, दो दरियाओं का मिलाप है। मुनकर का दिल जला के कहो या इली मदद, फिर इनको सामने बिठा के कहो या इली मदद, और फिर भी ना माने तो मुनकर को डरा के कहो या इली मदद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। पढ़ दी मैंने मजलिस, आवाज से थोड़ी तेज करें आवाज। पढ़ दी मैंने मजलिस, आपने सुन लिया। खुदा आपकी समातों को नजरबाज से बचाए। अब मैं खामोश हो रहा हूँ, आपको खामोश नहीं होना, मैं खामोश हो रहा हूँ, आपको खामोश नहीं होना। आबे कलील है अवाम, आबे कुर है उलमाए किराम। और दरिया के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, कुरान ने कहा मरजल बहरैन, आवाज आ रही पीछे वालों, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, पीछे वालों को बेदार करना। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये अली और फातिमा की शादी नहीं है, ये दो दरिया मिल रहे हैं, ये दो दरिया मिल रहे हैं। तो अली और फातिमा कौन है? दरिया। अब दरिया का हुक्म क्या है? मेरे लिबास पर कहीं से नजासत आ गई, मेरे लिबास पर कहीं से नजासत आ गई, मैं दरिया के किनारे जाके बैठ गया, शाम तक बैठा रहा। आप गुजरे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अपने लिबास से बात कर रहा हूँ। सारे मजो मेरी अकल में हंसेगा कि तुम दरिया के किनारे तो हो, दरिया से मुंतसिर नहीं हो। तो समझ में आ गया कि नजिस का दरिया के पहलू में बैठना नजिस को पाक नहीं बनाता। बोले यार, जरा सा बोले, अब तो बोले। वाला बात रखिए।
काकार खा रहा है, कोई अबूजार, कोई कंबर निकला। फकत दुनिया में अली उसको कहते हैं, या अली। कि मकतब का गदादार भी कलंदर निकला। सिफ़ीन के मैदान में जंग हो गई है। एक दिन अमीर शाम के लश्कर ने मंसूबा किया कि मिलकर अली पर हमला करो। लोगों ने अली को बताया, या अली, पूरी फौज का मंसूबा है कि मिलकर आप पर हमला कर दें। एक मरतबा अली को जलाल आया, तलवार निकाली, मैदान में आए कि अब किसमें हिम्मत है तलवार के सामने आए। सारा सिफ़ीन का लश्कर रुक गया अली की तलवार के सामने। सारा लश्कर, हजारों का लश्कर रुक गया अली की तलवार के सामने। और जब करबला में झगड़ा हो रहा था तो अबुल फजल अब्बास ने अपनी तलवार से लकीर खींची थी कि अगर अपनी माओ का दूध पिया है तो उस लकीर को उबूर करके दिखलाओ। जो तलवार की धार पर पूरा लश्कर रोक दे उसका नाम है अली, और जो तलवार की लकीर पर पूरी फौज रोक दे उसका नाम है अब्बास, और जो अब्बास को अपने पर्दे की कसम दे के रोक दे उसका नाम है ज़ैनब। बीवी की जब शादी हुई हजरत अब्दुल्ला से, तो दस्तूर है ना कि शादी के दूसरे दिन बड़ी बूढ़ी खवातीन दुल्हन से पूछती हैं कि घर पसंद आया। अच्छा, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार बड़े हैसियत वाले थे, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो जाफर के घर में ना हो और वो अब्दुल्ला की मिल्कियत में ना आई हो। पूछा कि बीवी घर पसंद आया? कहा सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। कहा वो क्या है? कहा मेरा हुसैन नजर नहीं आता। मेरा हुसैन नजर नहीं आता। बस आप बीवी को समझ गए। अब एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। करबला में अबुल फजल अब्बास की उम्र 32 साल है या 34 साल। अब्बास बेटे हैं उमर बरीन के, लेकिन अब्बास को पाला है ज़ैनब ने। अली अकबर बेटे हैं उम्मे लैला के, लेकिन अकबर को पाला है ज़ैनब ने। कासिम बेटे हैं उम्मे फरमा की, कासिम को पाला है ज़ैनब ने। असगर और सकीना ये दोनों औलाद है उम्मे रबाब की, दोनों को पाला है ज़ैनब ने। और औनो मोहम्मद तो थे ही बेटे, पूरी करबला पाल कर हुसैन को दी है ज़ैनब ने। अब मैं क्या पढ़ूँ? मैं सिर्फ तो जुमले पढ़ूंगा, शबी बरामद होगी, तो अब्दुल्ला को भी जान गए, बीबी ज़ैनब को भी जान गए। लेकिन जुमला सुनोगे, जब 28 रजब को हुसैन का काफिला तैयार हुआ है ना, तो अब्दुल्ला बीमार थे। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब से कि बहन जाओ जाकर अपने शौहर से इजाज़त ले लो। शहजादी घर में आई, अब्दुल्ला के सिरहाने जाकर बैठे और बीबी ने रोना शुरू किया। अब्दुल्ला ने कहा बीबी मैं आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपका रोना बीबी देख नहीं सकता, जो आपके दिल में है वो बयान कर दे। कहा सुनो अब्दुल्ला, मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। अब्दुल्ला अगर मैं साथ न गई तो दो काम एक साथ होंगे, इधर काफिला मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा घर से निकलेगा। हुसैन मदीने से मक्का पहुंचे 3 शाबान को। अब्दुल्ला बीमार थे, हुसैन के साथ मक्के ना जा सके। उन्होंने मालूम जिस दिन हुसैन करबला के लिए निकल रहे थे ना, अब्दुल्ला आए बीबी ज़ैनब के पास और कहा बीबी मेरी एक तमन्ना है। कहा अब्दुल्ला बतलाओ। अब बताओ तुम्हें तमन्ना क्या है? कहा मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लिबास पहना दो। बीबी
ने दोनों बच्चों को अच्छा लिबास पहनाया, बालों में कंघी की, बच्चों को सजाया। अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों का हाथ थामा, आए हुसैन की खिदमत में। आने के बाद एक मर्तबा हुसैन के चारों तरफ बच्चों का सदका दिया और कहा, फातिमा के जानी करबला में मैं तो ना हूंगा, मेरे ये दोनों बच्चे मेरी नियामत करेंगे। करबला का वाकया हुआ, वो अहले हरम जिंदान में रहे, छोटे मदीने आए। शहजादी ज़ैनब भी मदीने आ गई, लेकिन शहजादी ज़ैनब मदीने आने के बाद अपने शौहर के घर में नहीं गई। बीबी का क़याम था सैयद सज्जाद के घर में। रोजाना दस्तूर था अब्दुल्ला का कि वो सुबह से आ जाते सज्जाद के घर में, शाम तक बैठे रहते, शाम को खुदा हाफिज करके चले जाते। बस मैंने मसाइब पढ़ दिए, मैं बस उतर रहा हूँ। सुबह को आ जाते, शाम तक बैठे रहते। पांचवी की शब है, जिसकी आंखों में आंसू है, खुदा उसके आंसुओं को सैयदा के रुमाल में जगा दे। शाम तक बैठे रहते। एक दिन अब्दुल्ला आए, अब्दुल्ला आए, बीबी ज़ैनब का क़याम सैयद सज्जाद के घर में है। शाम हो गई, बैठे हुए, मगरिब इशा की नमाज हुई, बैठे हुए, रात का खाना हुआ, अब्दुल्ला बैठे हुए। सैयद सज्जाद ने पूछा कि आपका मुझसे कोई काम है? कहा हाँ बेटा। कहा फरमाइए। कहा बेटा, जिस दिन से तुम्हारी फूफी वापस आई है, एक दिन के लिए भी घर में नहीं आई, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कहना कि वो भी तो आपका घर है ना, एक बार तशरीफ नहीं आए। अब्दुल्ला के सज्जाद ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि फूफी से कहूंगा और उन्हें कुछ देर के लिए आपके घर भेजूंगा। कहा फूफी अम्मा, अब्दुल्ला आए थे, बड़ी देर बैठे रहे, चाहते हैं कि आप कुछ देर के लिए उनके घर चली जाए। कहा अच्छा बेटा, अगर तू कहता है तो मैं चली जाऊंगी। उन्होंने वाले दूसरा दिन हुआ, शहजादी अब्दुल्ला के घर में दाखिल हुई। दोपहर का वक्त था। एक मतलब शहजादी की निगाह पड़ी आंगन पे। सोचा होगा ना कि कभी ये घर आबाद था, कभी इस घर के आंगन में तो छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। आंगन को गौर से देखा और एक मकाम पर मिट्टी में जाके बैठ गई। अब्दुल्ला को खबर हुई कि बीबी ज़ैनब घर में आ गई। सुनोगे रोने वाले, अब्दुल्ला जैसे ही घर में दाखिल हुए, अब्दुल्ला की निगाह पड़ी एक ज़ईफ़ा पर। कहा ऐ ज़ईफ़ा, तुम कौन हो? तो ज़ईफ़ा ने रोका, अब्दुल्ला, जिसका भला घर करबला में उजड़ गया, उसे तुम कैसे पहचानोगे? कहा बीबी माफ करना, पहचानने में दुश्वारी हुई। ज़ैनब, अब तो तुम्हारी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती। कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, उस औरत की शक्ल क्या पहचानोगे जो अपने बच्चों का माता पिता कर सके? और अब एक मर्तबा जलाल के आलम में कहा, अब्दुल्ला, मुझे क्या इसलिए बुलाया है कि तुम ये पूछो कि तुम्हारे बेटे कैसे लगे? अब्दुल्ला कांपने लगे। नहीं बेटी, नहीं बेटी, नहीं शराबी, नहीं, वो तो गुलाम खाते थे, वो तो गुलाम खाते थे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि सिफ़ीन की जंग में मुझे मेरे मौला ने लश्कर अलंकार बनाया था और मैंने बढ़ बढ़ के हमला किया था।